Hello everyone, welcome back to physics classes, and today we are going to discuss about power and energy. So we know that the power is defined as at what rate we are consuming energy. Means the formula of power is P is equals to energy upon time, or we can say energy is equals to power into time. So we are representing power with the symbol P, energy with E, and time with T. So P is equals to energy upon time, or energy is equals to power into time. Now what does it physically mean? Suppose we have two bulbs which is rated as a 60 watt bulb and a 100 watt bulb. जैसे आपने देखा होगा मार्केट में एलईडीज आती हैं 10 वॉट की, 20 वॉट की, 100 वॉट की. ठीक है, तो पहले बल्ब आते थे इनकैंडेसेंट बल्ब जिनको हम बोलते थे, जो पीले पीले जलते थे. ठीक है, तो उसमें सपोज एक बल्ब है हमारे पास विच इज़ रेटेड, उसकी पावर है P1 इज इक्वल्स टू 60 वॉट, P2 इज इक्वल्स टू 100 वॉट. सपोज हमने दोनों को 1 सेकेंड के लिए ऑन किया, एक सेकंड के लिए इसको ऑन किया, एक सेकंड के लिए इसको ऑन किया. सो हमने देखा अब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम. तो 60 इंटू 1 60 जूल, 100 इंटू 1 100 जूल. तो अब ध्यान से देखो फिजिकली क्या मीन है. हमने एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम की. यहाँ पर हमने 60 जूल एनर्जी कंज्यूम की और यहाँ पर हमने 100 जूल एनर्जी कंज्यूम की. तो पावर किसकी ज़्यादा थी? इसकी. तो जिसकी पावर ज़्यादा है मीन्स वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है. अब यहाँ पे आ जाओ, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. तो ये वाला बल्ब 60 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा था 1 सेकेंड में. मीन्स पर यूनिट सेकेंड कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं हम पावर. यहाँ पर ये 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि हमने t इज इक्वल टू लिया है 1, तो 1 सेकेंड मतलब पर सेकेंड. सो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इन इलेक्ट्रिसिटी power is defined as P is equals to V into I. If we multiply the voltage and current, then we will get power. So P is equals to VI. This is the formula to calculate power. Now we know that energy is equals to power into time. Energy is equals to power into time. So energy is equals to power into time. So पावर की वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट की VI, तो हमने इसको पावर की जगह P की जगह रिप्लेस किया VI और मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला? एनर्जी इज इक्वल्स टू VIT. ओके. Now what is the unit of power? Unit of power is watt and unit of energy is joule. We have seen in electricity power is equals to voltage into current. Suppose this is equation 1. By using Ohm's law we know that V is equals to IR and we can calculate I is equals to V upon R. This is equation number 2. Now put I is equals to V upon R in equation 1. Put this value of I in equation 1. So what we will get? P is equals to V into I की जगह हम क्या पुट करेंगे? V अपॉन R. So हमने पुट किया V अपॉन R. So what we will get? Power is equals to V square upon R. So this is another formula for power. Now we will calculate energy. Okay, so we know energy is equals to power into time, which is equals to V into I into T. This is, suppose this is equation number 4. Now we have P is equals to V square upon R. Now in equation number 4 put P is equals to V square upon R. So what we will get? Energy is equal to V square upon R into T. So this is another formula for power and this is another formula for energy. First formula for power is P is equal to VI. This is second formula, P is equals to V square upon R. Now we will discuss third formula for power. Now for third formula of power we are using Ohm's law again. We know that from Ohm's law V is equals to IR. Now put V is equal to IR in equation 1. So अगर हम V को रिप्लेस कर देते हैं IR से तो फॉर्मूला क्या होगा? V is equals to IR into I. So P is equal to क्या फॉर्मूला मिलेगा? I square R. So this is third formula for power. The first one is P is equals to VI. The second one was P is equals to V square upon R, and third is P is equal to I square R. Now similarly we can calculate energy is equal to power into time. So we are replacing power with I square R. So what is the formula of energy? E is equals to I square R T. So energy हमें ये मिली I square R T. But we know heat is also a form of energy. So heat is equals to, I am representing heat with the symbol H. H is representing heat. Okay, so H is equals to I square RT. So H का फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला क्या होगा? I square RT.
और भी जितने भी एनर्जी के फॉर्मूले हैं सब हीट को रिप्रेजेंट करते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है हमको इस फॉर्मूले को प्रेफरेंस देनी है। हमें क्या क्या पता होना चाहिए? करंट पता होना चाहिए आई, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए आर, और टाइम पता होना चाहिए टी। हम इस फॉर्मूला को प्रेफरेंस देते हैं जब हम हीट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अभी हमने देखा था एक फॉर्मूला और कैलकुलेट किया था हमने एनर्जी का, विच इज़ वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। लेकिन हम प्रीफर करते हैं इस फॉर्मूले को, ये भी हमें हीट कैलकुलेट करके दे सकता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम प्रीफर करते हैं इस फॉर्मूला को। ओके, अब एक फॉर्मूला हमारे पास ये है एनर्जी, इसको भी हम हीट लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू पी इंटू टी और वी आई टी। तो इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हीट को, लेकिन इन तीनों फॉर्मूला में सबसे ज़्यादा प्रीफर करेंगे हम इस फॉर्मूला को। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें हीट कैलकुलेट करनी है और हमारे पास करंट है, रेजिस्टेंस है, टाइम है, तो हम और कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसी को हमेशा हम प्रेफर करेंगे। So we have discussed three formula for power, which is P is equal to VI, P is equal to V square upon R and P is equal to I square R. Correspondingly हम energy calculate कर सकते हैं just by multiplying the time. Suppose this is power P is equal to VI, so if we multiply it with T, then it will become energy. P is equals to V square upon RT, V square upon R into T. आई स्क्वायर आर पावर है, तो हमने टाइम से मल्टीप्लाई करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं पावर एंड एनर्जी। नाउ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दीज फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जो मैंने आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया है उसमें आपको एनर्जी और पावर के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप इन फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं असाइनमेंट में, वो क्वेश्चंस आपको एस चांद में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी उनके आंसर्स को मैच कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आंसर्स उनके प्रोवाइड करूँगा, बट अभी नहीं, पहले आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और जिससे मैं सॉल्यूशंस मांगूंगा सिर्फ मुझे वो स्टूडेंट अपने सॉल्यूशंस दिखाएगा और कोई स्टूडेंट अपने सॉल्यूशन मुझे नहीं दिखाएगा। So now we will discuss about different types of connections that we use in electricity. Basically there are three types of connection. The first one is series connections, second is parallel connections, and third is combination of series and parallel. Okay, in series connections current remains same and voltage divides. इसका मतलब क्या है अभी हम आगे देखेंगे जब हम सीरीज कनेक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो जाती है बट वोल्टेज रिमेन्स सेम। सो दोनों में डिफरेंस है, सीरीज में करंट सेम है और पैरेलल में वोल्टेज सेम है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रही है और यहाँ पर करंट डिवाइड हो रही है। ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन है उसको हम जब न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे तब देखेंगे कि करंट डिवाइड हो रही है या वोल्टेज सेम है, क्या होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक सीरीज़ कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है, तो वहाँ पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है, तो वो सीरीज़ कनेक्शन होगा। अगर वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड होती है तो वो एक पैरेलल कनेक्शन होगा। इसको समझने के लिए हम एक एनालॉजी यूज़ करेंगे। ओके, जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया था, वाटर अगर हम स्टोर करते हैं टैंक में, तो वो हम जैसे बैटरी में चार्ज स्टोर करते हैं, तो इसी तरीके से वो वर्क करता है। सेम कनेक्शंस में भी हम वाटर की एनालॉजी यूज़ करेंगे यूजिंग पाइप। नाउ सपोज वी हैव थ्री पाइप्स, पाइप 1, पाइप 2 एंड पाइप 3। ठीक है, इफ़ आई फ्लो वाटर इन दिस पाइप, ओके, मैंने इसको टैप से कनेक्ट किया और इसमें वो पानी को हमने यहाँ से इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं इन पाइप्स को आपस में जोड़ दूं ऐसे, ठीक है, इन सब पाइप्स को आपस में इस तरीके से जोड़ दूं, तो क्या होगा, जो पानी यहाँ पर फ्लो हो रहा था वो सब में सेम फ्लो होगा। मीन्स जो पानी यहाँ था वो सब में से सेम होगा। मीन्स अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, अभी हम इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हम सिमिलरली हमारे पास, और जितने भी मैं अभी पाइप के बारे में डिस्कस करें, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पाइप्स हैं तो सब में वाटर सेम फ्लो होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इन पाइप्स की को रिप्लेस कर दें रेजिस्टेंस से, सपोज दिस इज रेजिस्टेंस R1, R2 एंड दिस इज रेजिस्टर R3, और मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, सपोज दिस इज Rn। ठीक है, तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I, तो वो यहाँ से R1 के थ्रू पास होगी,
ठीक है, यहाँ पर जॉइंट है R2 R3 का, ठीक है, ये ऐसे जॉइंट हुए होंगे, तो ये सब में सेम करंट फ्लो होगी। तो मीन्स अगर करंट सब में सेम फ्लो होती है तो कनेक्शन सीरीज होगा। हाँ, ऐसे हम कनेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर करंट सेम होती है तो कनेक्शंस कौन सा होगा, सीरीज। अब पैरेलल के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। अभी हम सपोज इस कनेक्शन को मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, एक बैटरी से। सपोज हमने एक बैटरी यूज की, एक सेल यूज किया और इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। सपोज मेरे पास R1 R2 R3 Rn रेजिस्टेंस थे और ये जो बैटरी का पोटेंशियल था वो था V, ठीक है, और इसमें I करंट फ्लो हो रही थी। हमें कुछ नहीं पता है कि कितनी करंट थी, कितनी वोल्टेज थी, ठीक है। सो अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है R1 R2 R3 और Rn ने सब ने मिलकर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, वो कितना होगा। वी नो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हम सीरीज में अगर हम कनेक्ट करते हैं कंपोनेंट्स को, यहां पर मैंने रेजिस्टर्स लिए हैं, ये बल्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हमने यहां पर रेजिस्टर कंसिडर किए हैं, ठीक है। हमें ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, आप सब में करंट सेम फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर R1 के लिए सपोज वोल्टेज होगा V1, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू R1, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इज इक्वल्स टू है IR, ठीक है। और ये है V1, V2 सपोज इसके अक्रॉस है V2, ठीक है। यहाँ पर V2 कितना हो जाएगा, I इंटू R2, क्योंकि I सेम है सब में बट R2 की वैल्यू चेंज है। इसी तरीके से V3 हो जाएगा I इंटू R3 और Vn हो जाएगा I इंटू Rn, ठीक है। अब सब में करंट सेम है। नाउ इफ यू रिमेंबर, अभी मैंने आपको बताया था सीरीज में करंट सेम रहती है, तो करंट सेम है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो ये जो V था टोटल, ये V1 V2 V3 और अप टू Vn, ये इन सब में डिवाइड हो गए। डिवाइड कैसे होगा, सपोज हमारे पास बैटरी थी 10 वोल्ट्स की और वो 4 जगह डिवाइड हुई, एक जगह 2 वोल्ट्स आया, एक जगह 3 वोल्ट्स आया, एक जगह 4 वोल्ट्स आया और एक जगह 1 वोल्ट आया। तो ये ऐसे डिवाइड हो गया, ठीक है। अब वो कितना होगा, करंट तो सब में सेम है लेकिन उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज डिवाइड होगा। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये वोल्टेज सब में डिवाइड हो गया लेकिन करंट सेम था, ठीक है। अब मेन पॉइंट जो रिमेंबर रखना है आपको, सीरीज में जो वोल्टेज डिवाइड होगा, जो इन सब के अक्रॉस वोल्टेज आएगा, R1 के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है V1, R2 के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है V2, R3 के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है V3। तो ये जितना टोटल वोल्टेज होगा सब में डिवाइड होगा, अगर उन सब का हम सम निकालें तो वो V के इक्वल आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 + 3 + 4 + 1 कितना आएगा, 3 और 2 5, 4 9 और 1 10। तो वो टोटल बैटरी के इक्वल आना चाहिए सबका सम, अगर हम इनको सबको ऐड कर दें। तो यहाँ पर डिवाइड क्या हुआ, V1 V2 V3 और Vn में। तो अब हम टोटल इसके अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो वो इक्वल किसके आएगा, V के इक्वल। तो अभी हम सबको ऐड करेंगे, सो सबका सम होना चाहिए V के इक्वल। सो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू सम अप टू Vn। तो अब हम V1 की वैल्यू क्या है, I इंटू R1, V2 की वैल्यू है I इंटू R2 प्लस V3 की वैल्यू है I इंटू R3 प्लस डैश 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 प्लस I इंटू Rn। तो अगर मैं इसमें से I कॉमन ले सकते हैं, हम सब में I सेम है, तो ये हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सम अप टू Rn और ये इक्वल है V के। अब अगर इसको हम पूरे को एक R कंसिडर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR। ये ओम्स लॉ है, यही हमें यहाँ पर दिखाना था। तो R को हमने क्या किया, अगर हमने सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं
तो R क्या होगा, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इन सब का टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R, और वो क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सम अप टू Rn। तो इसको हम बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कितना आया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सिंपली आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको कनेक्शन आइडेंटिफाई करना है। कनेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक करंट फ्लो कराएंगे और देखेंगे सब में सेम करंट फ्लो हो रही है, मीन्स सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम सिंपली उनको ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने भी रेजिस्टेंस हैं सिंपली सबको हम ऐड कर देंगे। तो ऐसे हम उसका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं सीरीज कनेक्शंस में। So in series connections we have seen current remains same in all the components and voltage divides. Now let's consider an example in which there are three resistance connected in a manner. We don't know whether they are connected in series or they are in parallel. So there are 2 points A and B. Now what could be the question? Find the total resistance between AB, or find total resistance, find equivalent resistance, or find RAB. RAB means resistance between point A and B. Now first of all we have to identify whether they are connected in series or they are in parallel. So what we will do, we will consider a current is flowing here. Now we can see the current will remain same. There is no joint or something जहाँ पर करंट डिवाइड हो सके, कोई जॉइंट नहीं है, सिंपली सब कनेक्टेड हैं। तो मीन्स ये सीरीज में सब में करंट सेम होगी, तो करंट सेम है मीन्स वोल्टेज डिवाइड होगा और कनेक्शंस सीरीज में है। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि करंट सेम है तो कनेक्शन सीरीज में है। अब हमें पता है फॉर सीरीज कनेक्शन टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। तो जितने रेजिस्टेंस हैं उनको सिंपली हम ऐड कर देंगे, 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 15 ओम। तो हम सिर्फ देख के ही बता सकते हैं व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस। हमने देखा है सीरीज में है और जस्ट हमें सिंपली ऐड करना है। तो ऐड करके अगर मैं पूछूं इसमें, हमें ये सब सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, हम सिर्फ देख के बता सकते हैं अगर सीरीज में है तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, सिंपली हमने ऐड करना है इनको सीरीज में। तो ये ध्यान रखना है आपको। नाउ पैरेलल कनेक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, तो ध्यान से देखना उस वीडियो को, पैरेलल में कनेक्शंस कैसे होंगे।